Hello everyone. So welcome to the first class of electrical power generation and utilization. Uh, so since we are engaging this class first time, so this is the first lecture we are recording. So let's have a look at the syllabus. Okay. So this is the subject triple double EC 3320. It is for the B Tech, but the syllabus in the B Tech and the BE is same. So just the code changes, which become triple EC 3320 in your BE. Okay, and the electrical power generation utilization we are going to study in this. This is the 4 credit course. This is departmental core. Prerequisite is nil. You don't need any prerequisite course to learn this course. So we are going to discuss this course and just have a look at the course objective. So the course objective is to introduce the fundamentals of illumination engineering. Illumination is just related to the light. Okay, illuminate, you all know the meaning of this. So the bulbs and all those different types of illumination methods, few of them we are going to study about that. Various types of batteries and their fields of application, lithium ion batteries and so on. So there are several types of batteries used, so we are going to study basics of that, various types of batteries and their field of application. Okay, then railway electrification. ये रेलवे में जितना आपका रहता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, किस तरह से ट्रांसफार्मर में क्या होता है और वो एक वायर ऊपर होता है तो उसका किस तरह से वो इलेक्ट्रीफाई करता है उसको. So we are going to study about the railway electrification, various types of services and their characteristics, different services, traction. About the traction we are going to study. Then various types of conventional power plant. So there are conventional, non-conventional both, but in this we are going to study about the conventional power plant, which is your thermal, solar, not solar, thermal, hydro and nuclear, gas, so like that. Okay, and the suitability criteria. Then we are going to study about the site selection. First point in every power plant is site selection. Where we are going to establish that, and what are the criteria which are needed to establish any power plant, and the maintenance and the operation. So all these things we are going to study. Okay, so let's have a look at that. So let's have a look at this was the course objective. Then come to the course outcome. After the completion of the course, you must be well aware about and have the knowledge of thermal and nuclear power plants and their working. ये दोनों पावर प्लांट आपके किस तरह से वर्क करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए. हैव द नॉलेज ऑफ हाइड्रो एंड गैस पावर प्लांट एंड देयर वर्किंग. ओके, हाइड्रो पावर प्लांट. Have the knowledge of various types of cogeneration, captive power plant, various aspects of illumination design. You must know about that. Understand different types of electric traction system. Okay, different services and maintenance of line. So the line mainly referred as the railway line. Okay, railway line, not the track, but about the electrification. Okay, so let's have a look at the different units. It comprises of 4 units. Before the modification of the syllabus it was 5 unit. So this one, cogeneration, captive power plant, concept of distributed generation, it was a separate unit. And about the illumination and batteries was a separate unit, and electric traction is a separate unit. So this comprises of 5 units few years back, and now it comprises of 4 units. So let's have a look at first thermal power plant. Thermal means simply, आप जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स में वाटर का यूटिलाइजेशन होता है, उसको स्टीम किया जाता है. देन इट इज स्टीम विद द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. इट इंड्यूसेस इन द आर्मेचर in the turbine, and turbine is simply connected to the आर्मेचर. तो वो रोटेट करता है आपके जनरेटर को. तो ये उसका सिंपल प्रोसेस होता है. सो थर्मल मीन्स सिंपली हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, steam is used. Okay, so to develop that steam, we have 2 different processes over here. One is the coal fired plants and second is the nuclear power plant. Okay, just the first half is different, but the second half is
सेम इन बोथ ऑफ दीज दैट कोल में जो होता है, कोल फायर्ड प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो कोल फायर्ड प्लांट होता है उसमें हम सिंपली कोल को इस्तेमाल करते हैं स्टीम जनरेट करने के लिए, और इसमें हम लोग न्यूक्लियर को यूरेनियम 235 न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग उसको यूज़ करते हैं स्टीम जनरेट करने के लिए. तो नॉट द बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. So let's have a look at first of all at coal fired plant. Coal, you all know about that. हिंदुस्तान के अंदर जो कोयला आपका थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वी हैव अ बिग एरिया जिसमें आपका कोयला रहता है. ओके तो और कोयला हिंदुस्तान के अंदर कोयला जो है वो इंडियन कोल प्लस इंडोनेशियन प्लस ऑस्ट्रेलियन देर आर और वो लाया जाता है. तो वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल टू जनरेट अ पावर प्लांट. And how much amount of coal we need in that we will learn in the when we study this chapter in detail. Okay, then first point we need to establish any power plant is site selection, where we are going to establish our power plant. कोल ही में अगर मान लें तो कोल में यू नो दैट कोल पावर प्लांट है तो जो हो वो वी नीड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट. तो किसी न किसी रिवर के पास होना चाहिए. ओके तो ये सबसे बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, इजी एक्सेस टू दैट साइट, आसानी से आप जा सकें वहाँ पर. ठीक है, और शहर से दूर होना चाहिए. इट शुड बी अवे फ्रॉम द मेन पब्लिक प्लेसेस, हाईली पॉपुलेटेड प्लेसेस. एक पॉल्यूशन वगैरह होता है तो उससे प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट थिंग इज़ वहाँ की ज़मीन, रियल इस्टेट प्रॉब्लम्स. तो वो ज़मीन की कॉस्ट कम होना चाहिए बिकॉज वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड इन दैट. जैसे कि अगर सर श्रीनगर में बना लें तो सारा ज़मीन में पैसा चला जाएगा. सो we need to establish that site. We need to check that site where the low cost, okay, or easy access, easy availability of water, ash disposal area should be there क्योंकि इसमें ash बहुत ज़्यादा निकलती है आपकी. ठीक है, रेलवे ट्रैक भी उसमें लगाया जाता है ताकि आपका कोल जो है कोयला उसमें आ सके. सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स विच आर नीडेड फॉर सिलेक्शन ऑफ द साइट. वेरियस कंपोनेंट्स, अब उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, बॉयलर होता है और टरबाइन होता है, ऑल्टरनेटर होता है. बॉयलर में किस तरह से वर्किंग होती है, टरबाइन में किस तरह से होती है, ऑल्टरनेटर यू ऑल नो दैट है जनरेटर बेसिकली. सो ऑल दोस दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दैट पार्ट्स एंड देयर ऑपरेशन. उसमें अब उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग ऑपरेशन होते हैं. कोल हैंडलिंग प्लांट अलग होता है. ठीक है, और पल्वराइजिंग मिल अलग होती है कि कोल हैंडलिंग प्लांट के बाद में जब कोल होता है यार्ड के अंदर तो वहाँ कोल वहाँ से लेके पल्वराइजिंग मिल में जाता है जिसमें जस्ट लाइक पाउडर्ड फॉर्म में आपका कोल को कर दिया जाता है. ठीक है, और वो पल्वराइजिंग मिल्स जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं. कॉन्टैक्ट मिल होती है, बॉल मिल होती है, इम्पैक्ट मिल होती है. अब वी शुड स्टडी ऑल दोस इन डिटेल्स. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्वराइजिंग मिल in the power plant. Okay, these are, so there are various parts in that. Okay, then come to the steam and fuel cycle. ये दोनों साइकिल आपकी अलग होती हैं. स्टीम साइकिल, फ्यूल साइकिल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा उसको. ठीक है, एक स्टीम साइकिल होती है और फ्यूल साइकिल उसकी अलग होती है. तो both of these cycles we are going to study. Pollution control, what are the measures should be taken to control the pollution? And modern clean coal technologies, what are the modern clean coal technologies जिससे हम अच्छा कोयला इस्तेमाल कर सकें. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड टू एस्टेब्लिश एनी कोल फायर्ड पावर प्लांट. ओके, देन नेक्स्ट कम टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर पावर प्लांट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस ऑफ ओनली फ्यूल. अदरवाइज द थर्मल पावर प्लांट मीन्स कोल एंड न्यूक्लियर आर सेम. ओके, सो सिमिलरली वी नीड साइट सिलेक्शन इन दैट. अब साइट सिलेक्शन होता है कि इसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, बाकी तो पॉइंट्स हैं वो कि इजी एक्सेस ऑफ रोड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वी नीड वाटर इन दैट बट नॉट इन दैट मच अमाउंट एज इट वाज नीडेड इन द कोल फायर, बट वी नीड दैट. ओके, एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन that must be there. Okay, and we don't need in this the coal handling plant because fuel is in very small amount. Okay,
So different, so these are the basic points to select the site. And away from the population area, populated area, because उसके hazardous effects बहुत ज़्यादा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के. Special safety measures should be taken over there. So principle of fission fusion you have studied earlier. Okay, एक इलेक्ट्रॉन जब आपका एटम से टकराता है तो इट प्रोड्यूसेस मोर, सॉरी न्यूट्रॉन जब आपका उससे होता है तो मोर न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस. तो दीज आर द दैट प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड ओवर हेयर, जिससे आपकी हीट डेवलप होती है. सिमिलर इन दैट मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग तरह के फास्ट ब्रीडर एंड द रिएक्टर्स जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर आपका फ्यूल रखा जाता है और पूरा एक इनबिल्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. एंड फ्यूल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, इनरिचमेंट एंड फैब्रिकेशन, कंट्रोल ऑफ रिएक्टर को किस तरह से कंट्रोल रॉड से उसमें कंट्रोल किया जाता है. एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इस पे क्या क्या असर पड़ सकता है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स इन दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट. ओके, सो नेक्स्ट कम टू द हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट में आपका जो होता है, अब एक चीज़ ये है कि लेट मी कंप्लीट हाइड्रो ऑल्सो. सो हाइड्रो पावर प्लांट असल में इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50 years बैक इफ़ यू गो, देन थर्मल पावर प्लांट मीन्स कोल जनरेट पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट, दीज आर इन इक्वल अमाउंट. जितनी इलेक्ट्रिसिटी अप्रॉक्सीमेटली हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट होती थी उतनी ही थर्मल पावर प्लांट से होती थी. बट ड्यू टू सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, दैट इज़ बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट नीड्स वेरी लॉन्ग टाइम टू इस्टेब्लिश. हाइड्रो पावर प्लांट में तकरीबन 15 से 20 साल लग जाते हैं बनाने में. ठीक है. और इसमें जो है आपका कोल फायर प्लांट में 5 से 10 साल का होता है. तो हाइड्रो पावर प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ मैसिव स्ट्रक्चर इज बीइंग नीडेड इन दैट. ओके, सो अब साइट सिलेक्शन ऐसा होता है कि इसमें जो आपकी रिवर होती है, रिवर आपकी आ रही होती है, तो उसमें बॉटल नेक देखना होता है, ताकि इस तरह से जब आपकी बॉटल नेक होगी, ठीक है, रिवर पीछे से पूरा आ रहा होगा और ये बॉटल नेक होगी, तो यहाँ पर डैम का साइज़ जो है कम से कम रह सके. ठीक है, यहाँ डैम का साइज़ कम से कम रहेगा, तो उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर, एक तो अमाउंट ऑफ कंक्रीट शुड बी लो, और ये पूरा एरिया ज़्यादा आपका जो होगा ये पीछे का ये सब एज अ रिजर्वॉयर इस्तेमाल हो जाएगा. तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दैट. तो वी चेक दैट बॉटल नेक. ओके, तो वो साइट सिलेक्शन देखी जाती है. अब यहाँ पर क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हमें डैम का करना है, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन शुड बी देयर एंड एक्सेस ऑफ रोड एट दैट पॉइंट शुड बी गुड, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट, ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड हैव टू गो, एंड वी हैव टू इंस्टॉल द बिग जनरेटर्स एंड बिग टर्बाइंस over here. तो access of road should be good at that point. So these are the points which we consider in that. Geological effect should be there, strong foundation, the same thing came. तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, अलग अलग तरह के जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो मेन कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन. अब इसमें भी आपके जो मेन फंक्शंस होते हैं, टरबाइन आपका होता है और जनरेटर आपका होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो वी विल स्टडी इन डिटेल. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइंस, जो अलग अलग तरह के फ्रांसिस टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन, जो आपके कैप्लन टर्बाइन जो आपके यूज़ होते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. पम्प्ड स्टोरेज प्लांट इज सिंपली दैट देयर इज़ अ हाइड्रो पावर प्लांट ओवर हेयर. इसमें जो आपका ये छोटा अमाउंट होता है पम्प्ड मीन्स सिंपली पंप लगाया जाता है उसमें इन इस तरह से कि जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है, तो यहाँ पर अगर आपका रिजर्वायर है छोटा सा, तो उसमें जो पानी है आपका, तो उसकी वजह से ये जनरेटर मूव कर रहा है. तो ये जनरेटर जो मूव कर रहा है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है. जनरेटर इज गिविंग द इलेक्ट्रिसिटी. सो जब उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत, अब ये पानी जो है ये इस्तेमाल हो रहा है, ये नीचे चला गया आपका, यहाँ इस्तेमाल होकर नीचे चला गया. जब ये पानी नीचे चला जाता है तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी का जब इस्तेमाल नहीं होता, मीन्स इट वॉज डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो अब उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम ये पंप मूव कराते हैं. ओके, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी जनरेट हो रही है, तो जब इसका कंजम्पशन नहीं हो रहा तो हम वहाँ पर उसको पंप मूव कराते हैं. सो उसी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पर पंप मूव कराते हैं. अब ये पंप जो आपका मूव करता है, तो ये सिंपली आपका यहाँ से
पानी को ऊपर पहुंचा देता है, ठीक है, तो फिर से आपके रिजर्वायर के अंदर वाटर हो जाता है। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज अ पम्प्ड स्टोरेज प्लांट। ओके, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, इसके क्या क्या इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं कि जब यहाँ पर आप पावर प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे लोग इलाके के जो होते हैं तो ये उनको यहाँ से खाली करना होता है फिशरीज, मछली वगैरह के लिए, फिशरीज वगैरह के लिए इसमें, क्योंकि डैम बन जाता है तो नेचुरल लाइफ जो होती है उनकी वो रुक जाती है, ठीक है। तो उसके अलग अलग इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो इसके जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं वी विल स्टडी दैट ऑल्सो। So this is all about basics about the hydropower plant. Okay, so let's have a look at that, how and how much ratio in India the total generation is going on. So let's have a look at come to this one. I have already installed that. All in India. Download is. So this is the total generation in India today. Okay, ये टोटल जनरेशन जो है आज की डेट में आपका ये है जो ये शो कर रहा है। सिंपली अब आप इसमें ये देखें कि दिस इज रीजन वाइज, सिंस देयर आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के अंदर 5 ग्रिड्स हैं, तो ये रीजन वाइज दे रखा है। अब रीजन में भी स्टेट वाइज, प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। दिस इज कोल, सो यू कैन सी हियर हाउ मच, and this is the data location wise regional summary. This is the data of 31/12/2020. Okay, so till the last date of the last year, 31/12/2020. So you can then through coal we are generating the maximum power, that is 2,06,124 megawatt. Okay, and have a look at nuclear is only small, 6,780. Hydro, it is 45,798. Okay, so these are the and you can calculate the ratio कि सबसे ज़्यादा कोल है। Okay, then gas you see 24,956. डीजल is so small, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये है आपका, और renewable energy sources it comes over here 91,153, and 91,153 maybe these are the, it is being divided here. Small hydro is this much, wind is 38,624, and solar is 37,464. And I tell you one thing, that in 2014 approximately the ratio of solar and wind is approximately 1:10. Okay, now they are getting equal. It is 37,464 and it is 38,000, 1,200 approximately, or less than that megawatt difference is remaining now. In 2014 I remember that solar was 2,000 megawatt only, and wind was 20,000 megawatt. Okay, but as the research on the solar films is going on a lot, और सोलर पैनल्स की कॉस्ट बहुत कम हो गई है, सो नाउ द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द सोलर पैनल्स इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू द विंड, एज कम्पेयर टू द बिफोर, कि उस वक्त बहुत ज़्यादा पर यूनिट कॉस्ट आया करती थी, अब बहुत कम आ गई। अप्रॉक्सीमेटली समबडी वाज टेलिंग मी दैट 1.5 रुपीज़ टू एंड 1 रुपी ऑल्सो समबडी टेल, तो इतना कम आ गया है पर यूनिट कॉस्ट उसका। तो उस कॉस्ट के लो होने की वजह से अब सोलर का आप जान रहे हैं इस वक्त कितना बूम है मार्केट के अंदर, तो जिसकी वजह से सोलर जनरेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है काफ़ी। विंड इज़ ऑल्सो जनरेटिंग बट नॉट इन दैट रेशियो। विंड आप देखिए पिछले 6 सालों के अंदर
20,000 से 38,000 हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ ट्वाइस ऑफ दैट. बट यू कैन सी ओवर हेयर 2,000 से 37,000, हाउ मच टाइम इट इज इंक्रीजेस. ओके, 19 times approximately it increases. It is getting 2 times and it is 19 times. So in few years solar must overtake the wind. Okay, so this is the total generation, and in what ratio in India the generation is going on. So, and biomass, cogeneration and waste of energy, these are also there. So the total comprises of 91,153, but the maximum is coal. Still in India the maximum generation is coal. You can also see different generation in India is going on. In which part it is going on? State wise installed capacity in northern region, state wise installed capacity eastern, western, southern, northeastern. If you want to see different generation state wise, you can also see on this website. This is the government website, National Power Portal. Everything is available over here. So If you look at the others, so let's come to this one again. Now comes to gas turbine. The gas is as a fuel is being used. प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन उसका क्या होता है, ओपन एंड क्लोज साइकिल, ये हम पढ़ेंगे. कंबाइंड साइकिल कैसे होती है, उसमें गैस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. एंड IGCC is simply an integrated gasification combined cycle. This is a technology which use a high pressure gasifier, okay, to turn coal and other carbon based fuels into pressurized gas. And in the same manner it can also remove the impurities. Okay, so this is IGCC, the integrated gasification combined cycle. We are also going to study this. Then come to the cogeneration and captive power plant. What is cogeneration? Cogeneration simply, as the name suggests, combined generation. And you know that in industries we need heat in industries and manufacturing process also, and we need energy to generate electricity also. तो इसमें हम दोनों काम करते हैं. दोनों काम हम किस तरह से करते हैं? एक होती है टॉपिंग साइकिल, एक होती है बॉटमिंग साइकिल इसमें. और टॉपिंग और बॉटमिंग साइकिल में कोजनरेशन पावर प्लांट से हम ये करते हैं कि इसमें एक साइकिल में हम ये करते हैं कि जो हमारी हीट जनरेट हो रही है, मीन्स स्टीम जनरेट हो रही है, उसको पहले हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर लें. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने के बाद में जो हमारी हीट वहाँ से निकल कर आती है बाहर, वी यूटिलाइज दैट हीट अगेन. ओके, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके और फिर हम उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम में टर्न ओवर करके और उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. ओके, दिस इज़ वन एस्पेक्ट. एंड सेकंड एस्पेक्ट इज दिस, पहले जो हीट आपकी जनरेट हो रही है तो स्टीम जनरेट हो रही है, उसको हम पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम कर लेते हैं. उसके बाद में उससे वेस्ट हीट जो निकलती है, स्टीम निकलती है टरबाइन से, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर लेते हैं. तो इसमें हमारा वेस्टेज बहुत कम हो जाता है और हमारा यूटिलाइजेशन उस स्टीम का बढ़ जाता है. तो एफिशिएंट वे में इसमें काम होता है. दिस इज सिंपली द को जनरेशन प्लांट्स. अब को जनरेशन टेक्नोलॉजीज अलग अलग होती हैं. इसमें कौन कौन से पावर प्लांट्स को हम कंबाइन कर देते हैं, तो वो आपकी को जनरेशन टेक्नोलॉजीज में आती है. देन कम टू द टाइप्स ऑफ, नाउ दिस इज टाइप्स ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट. व्हाट इज कैप्टिव पावर प्लांट? कैप्टिव पावर प्लांट इज सिंपली द सेपरेट प्लांट विच द इंडस्ट्रीज यूज. जैसे कि आज आप कह सकते हैं बहुत सारे जगह पर सोलर इज़ बीइंग यूज एज अ सेपरेट जनरेटिंग स्टेशन. तो ये सोलर जो है ये आपका कैप्टिव प्लांट है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का. ठीक है, उस इंडस्ट्री का सेपरेट प्लांट है. तो दैट इज सोलर पावर प्लांट इज सिंपली द कैप्टिव पावर प्लांट ऑफ दैट इंडस्ट्री. सिमिलरली सोलर तो आज है, अदरवाइज बिफोर ऑल्सो बहुत सारे छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट, ओके, और स्टीम जनरेटिंग पावर प्लांट, या सिंपली आप कह लिए डीजल जनरेटर. तो बहुत सारी जगह पर अगर लाइट चली गई आपकी, ठीक है, लाइट चली गई, इन दैट केस मेन सप्लाई बंद हो जाती है, तो डीजल जनरेटर इज़ बीइंग यूज
for any industry or for any small plant. So diesel generator is simply you can call as this is a captive power plant for that industry. Okay, so that is that. And different types of what are different types of captive power plant and concept of distributed generation. Distributed generation is also the same thing, जो अपना separate plant होता है. ठीक है, तो इसका जो concept है वो क्या है? So we are going to study all those things, the basics of all those things, not in detail about all those things. Okay, then come to the illumination. अब laws of illumination क्या क्या होता है? Various aspects of illumination design. कोई various aspects of illumination design है, मतलब एक रूम है पर्टिकुलर, उसमें आपको कितने बल्ब और कितनी इल्यूमिनेशन के लगाएंगे जिससे दैट मच अमाउंट ऑफ लाइट वी नीड वो आपका हो सके. तो दोज आर द एस्पेक्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी. इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट, when there are concept of electrolysis comes, simply the batteries comes in mind. So types of batteries, their components, charging and maintenance of those batteries. Okay, then the last unit should be of electric traction. Electric traction, as I told you earlier, electric traction is simply related to what? Electric traction is simply related to the railways. ट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें रेलवे लाइन जो होती है, और रेलवे लाइन के ऊपर जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन जाती है जो कि आपकी पूरी रेलवे ट्रैक पे रहती है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, जिसके ऊपर एक पेंटोग्राफ ऊपर लगा होता है. जो आपका रेल बोगी होती है उसमें आपने देखा होगा यूं करके एक ये लगा रहता है. ठीक है, इसका यूं डिज़ाइन होता है. ये आपकी रेलवे लाइन जा रही हो, सॉरी ऊपर ट्रांसमिशन लाइन जा रही होती है, और जब आपका ट्रेन मूव करती है, बोगी ये मूव करेगी आगे, तो ये पेंटोग्राफ इससे टच होकर आगे मूव करता रहता है. ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपली connection of the electricity in the engine and the line. This connects both of them. This is simply called as a pantograph. ठीक है, तो अब इसको किस तरह, तो इसमें आप पढ़ेंगे स्पीड टाइम कर्व ट्रैक्शन में. ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट्स क्या क्या होते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज दैट, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक्शन सब स्टेशन, अलग अलग सब स्टेशन, करंट कलेक्टर उसमें, नेगेटिव बूस्टर्स. दीज आर ऑल द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द fourth unit, sorry. So and from the next one we should start about the thermal power plant. So I will upload the lecture, this is the first introductory lecture. I'm going to upload this now, and from the next one we are going to start about the thermal power plant. Okay, तो thermal power plant हम लोग पढ़ेंगे, and in the same manner I will make the lecture and upload on the YouTube and give you the link for that. So you all should go through that thoroughly, और उसके नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा विद डेट विद टॉपिक. और जैसे मैंने शायद आप लोगों से पहले भी कहा कि मैं पहले ही इस चीज़ को बता दे रहा हूँ, इन द लास्ट व्हेन आई आस्क यू फॉर द सबमिशन ऑफ द नोट्स एज एन असाइनमेंट, देन यू हैव टू फेस अ प्रॉब्लम. तो इसलिए इस काम को अभी से आप करते रहिए, ताकि अगर अभी से करते रहेंगे तो इन द लास्ट शुड बी ईजी फॉर दैट, लेक्चर बनते रहेंगे. एंड वी हैव टू टेक द सेशनल्स and assignments also. So we should also decide how we are going to do the quiz, or what we are going to do that. Okay, so this is for today only. So from next turn we are going to start thermal power plant. Okay, thank you, thanks a lot.